So today we will discuss regarding the third cranial nerve, that is oculomotor nerve. So oculomotor nerve again क्या क्या देखना है हमें? The nucleus, where it is, which part of the brain stem, then what is the course and is there any branches and its supply and with its applied anatomy. So this cranial nerve, the oculomotor nerve, it will act as a sensory as well as a motor part. So sensory, as a sensory, so it will collect the information from the proprioception, and as a motor it will act as a motor to supply the extraocular muscles. So अभी आपने पढ़ा है आई बॉल में जो एक्स्ट्रा ओकुलर एंड इंट्रा ओकुलर एक्सटेंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल्स जो आपने सुना है. सो दोज एक्सटेंसिक मसल्स विल बी सप्लाइड बाय द this one, that is a oculomotor one, except the one muscle. So remaining all the major portion of the extrinsic muscles will be supplied by the oculomotor nerve. So we'll see the first nucleus from where it starts. So the oculomotor nucleus will be present at the level of at the midbrain, at the level of superior colliculus. So हमने पढ़ा था, so जो midbrain अभी सभी रिपीट हो जाएगा, मिड ब्रेन, पॉन्स, मिडला, जो ब्रेन स्टेम हमने पढ़ा था. सो एवरीथिंग विल बी रिपीटेड हियर. सो व्हेन यू सी द मिड ब्रेन, फॉर एग्जांपल वेयर इज द मिड ब्रेन, सो दिस इज एन मिड ब्रेन and this is the crus of cerebri, and this is posteriorly superior colliculus, inferior colliculus. So here there is an cerebral aqueduct, okay, and this we know that what is this is substantia nigra. Now so in the midbrain, when you take a section of the midbrain at the superior colliculus level, okay, एट द सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल अगर आप सेक्शन लेते हैं मिड ब्रेन का, वो विल गेट द न्यूक्लियस ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व. सो इफ़ यू फॉर एग्जांपल ये सेक्शन है आपका मिड ब्रेन का एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस. सो हियर द पार्ट्स, ये जो पार्ट्स अभी ऐसा दिखेगा आपको मिड ब्रेन, एंड दिस इज योर एक्वेडक्ट. सो सराउंडिंग टू द एक्वेडक्ट देयर इज एन ग्रे मैटर, सो दैट इज नोन एज पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर और प्री सेंट्रल गैरस पार्ट बोलते हैं या प्री सेंट्रल ग्रे मैटर बोलते हैं. सो सराउंडिंग टू द एक्वेडक्ट पार्ट देयर इज एन ग्रे मैटर पार्ट, सो पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर. सो दिस इज द पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर. सो इन द पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर, सो यहाँ पे आपका एक्वेडक्ट है. सो लैटरल, एंटीरो लैटरल टू द एक्वेडक्ट, सो एंटीरो लैटरल अप्रोक्सीमेटली हियर. So anterolateral to the aqueduct, so there is a two nucleus, because दो nucleus में left and right. So one is the left nucleus and the right nucleus. This is the nucleus of the oculomotor. कहाँ पे मिलेगा? At the midbrain, at the level of the superior colliculus. So at the periaqueductal gray matter. So यहाँ पे आपको मिलेगा. This is the nucleus of oculomotor nerve. Okay. Now and from this nucleus, so there will be an extension of the nerve fiber. There is an axon. So this axon, so it will pass from it will pass to the anterior part. So while passing to the anteriorly, so it will pass the substantia nigra on both sides, and here there is one more what is that, red nucleus. So even the red nucleus is also crossed by this oculomotor nerve. And then what will come, so उसका exit कैसा होता है? So here, so it will exit at the from this part. ये हमने क्या देखा था? Interpeduncular fossa. Interpeduncular fossa. If you see the midbrain from anteriorly, so ये अगर midbrain है, so ये आपका रहेगा interpeduncular fossa. This is interpeduncular fossa. So ये जो nerve है, so here at the interpeduncular fossa में वो exit हो जाते हैं. The oculomotor nerve, so which will extend from the nucleus, from the periaqueductal gray matter, then it goes anteriorly. While going anteriorly, it crosses the
red nucleus and substantia nigra, and it will exit through the interpeduncular fossa. So here from this there is an exit of the oculomotor. For यहाँ से फिर वो आगे जाएगा, फिर यहाँ से ये इधर आगे जाएगा और इधर आगे जाएगा. सो फर्स्ट बेसिक पार्ट, न्यूक्लियस कहाँ पे है, कौन से न्यूक्लियस कहाँ पे एग्जैक्टली कौन से लेवल पे आपको मिलेगा वो न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस से ये एक्सॉन यहाँ से, मतलब ये जो पार्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट है, मिड ब्रेन, और यहाँ तक दैट इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट. सो यहाँ से जो बाहर आता है इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज़ अ मिड ब्रेन से ये बाहर निकलता है. सो मिड ब्रेन से बाहर निकलता है बट इट विल बी इन द क्रेनियल कैविटी ओनली, क्रेनियल कैविटी में ही रहता है बट इट विल बी अवे फ्रॉम द मिड ब्रेन. सो दिस इज़ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट. और यहाँ से जो आपका शुरू होता है, जो एग्जिट फ्रॉम द इंटरपेडुंकुलर फोसा, सो यहाँ से जो एग्जिट, जहाँ से जो एक्सन पास हो रहा है, दिस इज़ द PNS पार्ट, दिस इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पार्ट. सो यहाँ से जो उसका कोर्स शुरू होता है, अभी हमें पता चला यहाँ से शुरू हो रहा है, ओके, एग्जिट यहाँ पे आ गया, दैट्स ऑल. बट यहाँ से आपको आगे उसका जो ना कोर्स अभी देखना है. एंड वन थिंग, द oculomotor nerve, the third and the fourth cranial nerve, that is a trochlear, and one more, that is a sixth cranial nerve, abducent. So ये तीनों cranial nerve जो है which will supply to the eyeball muscles. सो ये आईबॉल, मतलब आईबॉल कहाँ पे रहता है, ये ऑर्बिटल कैविटी में रहता है. सो ऑर्बिटल कैविटी, ये जो सभी नर्व्स जो है, ये तीनों नर्व्स, ये तीनों क्रेनियल नर्व्स, सो ये तीनों क्रेनियल नर्व, सो दे विल एंटर इनटू द ऑर्बिटल कैविटी. सो while entering into the orbital cavity, okay, so just a minute, yes, so ये तीनों cranial nerve जो है, so which will supply to the eyeball muscles. So eyeball muscles के लिए it will enter into the orbital cavity. So again you have to remind, थोड़ा यहाँ पे रिमाइंड करना है, go back to your skull bone में हमने देखा था. सो क्रेनियल कैविटी, देन ऑर्बिटल कैविटी, एंटीरियरली जो ऑर्बिटल कैविटी था. सो ऑर्बिटल कैविटी में जो आईबॉल, सो एंट्री क्रेनियल कैविटी से ऑर्बिटल कैविटी जाने के लिए जो रास्ता है, जो ओपनिंग है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ दैट, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सो जब हम स्कल एंटीरियरली देखते हैं, सो ये आपको ऑर्बिटल कैविटी दिखेगा और ये एक ऑर्बिटल कैविटी दिखेगा. ओके, सो व्हेन यू सी फ्रॉम एंटीरियरली, सो अगर इसका पोस्टीरियर पार्ट में, सो देयर इज़ एन फिशर. सो हमने पढ़ा है ड्यूरिंग द स्कल बोन में पढ़ा है. सो देयर इज अ फ्रेश फिशर, दैट इज नोन एज अ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ये जो तीनों क्रेनियल नर्व जो है, सो दे विल एंटर इनटू द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू द सेम ओपनिंग, दैट इज अ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सो अभी थोड़ा हम डिटेल में देखना है अभी आगे. सो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस यहाँ से एग्जिट हो गया. सो नाउ विल सी दिट्स अ कोर्स. सो यहाँ से जो शुरू होता है टिल द एंट्री टू योर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, वो क्या क्या होता है और कहाँ से जाएगा. सो फॉर दैट, सो वेन एवर, ओके, सो इफ यू सी फ्रॉम द सेम लैटरल व्यू, सो आई विल टेक वन मोर डायग्राम. सो दिस इज एन लैटरल व्यू से. सो ये जो आपका क्रेनियल नर्व यहाँ से बाहर आ गया, इधर से और इधर से बाहर आ गया. ओके, so now from this which will goes anteriorly, so anterior to the mid brain, so क्या मिलेगा आपको स्ट्रक्चर. so anterior to the mid brain जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट है, so this is the cerebrum, okay, and this is a brain stem, sorry, mid brain and pons medulla. so ये जो आपको this is an diagram. now यहाँ पे क्या हो रहा है, सो फ्रॉम दिस पार्ट द क्रेनियल नर्व यहाँ से एग्जिट हो रहा है. सो एग्जिट होने के बाद, सो दे विल पास टू द एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर जा रहा है. एंटीरियरली कहाँ पे जा रहा है वो आपको थोड़ा याद रखना है यहाँ पे. सो दैट इज़ जो कोर्स में यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ कोर्स के लिए. सो वेन एवर इट गेट एंटर्स एग्जिट, सो इसके साथ आपको दो आर्टरी मिलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे एग्जिट हो रहा है ना ये इंटरपेडुंकुलर फोसा से. सो हियर देर आर टू आर्टरीज. सो उसके लिए आई विल टेक वन मोर डायग्राम. दिस इज इंटीरियर एस्पेक्ट, पॉन्स मेडुला, ये जो इंटीरियर एस्पेक्ट है, और ये इंटरपेडुंकुलर फोसा. सो यहाँ से जो बाहर जब आता है ये क्रेनियल नर्व, ओके, सो दिस इज वन एंड दिस इज अनदर,
Okay, I will make it clear. So this is the इंटरप्रेटेबल. ओके, ये यहाँ से ये बाहर आ जाएगा. ओके, और ये यहाँ से ये बाहर आ जाएगा. ये क्रेनियल नर्व है. सो जब ये बाहर आ रहा है, ये जो एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा था कल लास्ट क्लास ब्लड सप्लाई ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. सो इस ब्लड सप्लाई में सो 2 वर्टिब्रल आर्टरीज, बेसिलर आर्टरी एंड बेसिलर आर्टरी जो टर्मिनल ब्रांच था और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. सो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ से, दिस इज अ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ओके, एंड उसके पहले देयर इज वन मोर ब्रांच, दिस इज सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी. सो यहाँ पे 2 मेन आर्टरी आपको मिल रहा है, सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी एंड टर्मिनल ब्रांच दैट इज पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ये 2 आर्टरी के बीच में से वो एग्जिट होता है, द ओकुलोमोटर नर्व विच इज एग्जिट फ्रॉम द बिटवीन दीज टू. जब ये बाहर आता है, बाहर आने के बाद उसको सुपीरियर दैट इज व्हाट इज दैट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी रहता है, और उसका इन्फीरियर सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये दोनों के बीच में से ये पास होता है. तो ये उसका इंटीमेट रिलेशन होता है. सो यहाँ पे आपको एनाटॉमिकली क्यों देखना है, क्लिनिकली इट इज़ एन वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज वेन एवर एनी डिसीज ऑफ द आर्टरीज लाइक द एन्यूरिज्म, सो इफ कोई अगर एन्यूरिज्म ऑफ द सेरेब्रल आर्टरी, एन्यूरिज्म ऑफ द सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी अगर होता है, सो व्हाट विल हैपन, सो दैट एन्यूरिज्म ऑफ द आर्टरी विच विल कंप्रेस द ओकुलोमोटर नर्व, बिकॉज ये दोनों के बीच में ओकुलोमोटर पास हो रहा है. सो इसीलिए अगर ये एन्यूरिज्म होता है, सो इट विल कंप्रेस, so that nerve will be compressed by the artery, there's aneurysm artery, so that may lead to the compression of the oculomotor nerve. So due to the compression there may be a paralysis of the that muscles जो यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, वो मसल्स पैरालाइज हो सकते हैं. सो वो जो क्लिनिकल एस्पेक्ट से आपको ये याद रखना है. सो नाउ अगेन कोर्स, सो एग्जिट आ गया है. ओके, सो ये दोनों के बीच में से वो पास हो गया. ओके, देन आगे कहाँ पे जा रहा है, सो आगे कहाँ पे जा रहा है, सो उसके लिए I will take the lateral view of the skull. So this is our anterior cranial fossa, this is middle cranial fossa and this is posterior cranial fossa. यहाँ पे जो foramina magnum. Okay, now यहाँ पे आपका मिड ब्रेन कहाँ पे है, दिस इज अ मिड ब्रेन. यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स, मेडुला, सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड, ओके, दिस इज अ पॉन्स, ये मेडुला एंड दिस इज अ मिड ब्रेन. सो यहाँ पे मिड ब्रेन है, ये यहाँ पे जो सेरेबेलम है. नाउ सो यहाँ से जो निकल रहा है जो ओकुलोमोटर नर्व, सो विच गोज एंटीरियरली विच एंटर्स इनटू द मिडिल क्रेनियल फोसा. ये जो मिडिल क्रेनियल फोसा है, सो मिडिल क्रेनियल फोसा में हमने क्या देखा था, सो अगेन दिस इज वन मोर डायग्राम ऑफ द स्कल फ्रॉम द सुपीरियर व्यू. सो दिस इज अवर सेला टर्शिका. ओके, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, फोरामेन मैग्नम, दिस इज एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट. यहाँ पे इन द सेला टर्शिका के दोनों तरफ ऑन बिसाइड टू द सेला टर्शिका देयर इज a large dural venous sinus, that is a cavernous sinus. So there is a 2 cavernous sinus on beside to the सेला टर्शिका पार्ट. सो नाउ ये जो ओकुलोमोटर जो मिड ब्रेन से बाहर आने के बाद ये कहाँ पे जा रहा है, सो दिस ओकुलोमोटर विच विल पास थ्रू द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस. अगेन यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा याद रखना है. सो कैवर्नस साइनस, फॉर एग्जांपल आई विल मेक ए डायग्राम हियर, हाउ इट कैसे रहेगा कैवर्नस साइनस. सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, अप्रोक्सीमेटली. सो विल टेक, सो दिस इज एन कैवर्नस साइनस. सो ये कैवर्नस साइनस है. सो कैवर्नस साइनस का दिस इज द लैटरल वॉल. ये जो फॉर एग्जांपल this is a cavernous sinus. Okay, so we'll think this is a cavernous sinus. से इसका होगा lateral wall और ये रहेगा medial wall. This is a anterior, this is a posterior and this is a roof and this is a floor of the cavernous sinus. Now ये जो oculomotor nerve है, so ये आपका posterior surface है. This is the posterior surface of the cavernous sinus. This is the lateral surface of the और lateral wall of the cavernous sinus. ये जो oculomotor nerve जो पास हो रहा है, so it will pass through the lateral wall of the cavernous sinus. cavernous sinus के बीच में से नहीं जाता है, ये उसके वॉल जो है. सो अगेन दिस इज, अगर आप देखते हैं, दिस इज cavernous sinus का पोस्टीरियर पार्ट है. सो ये आपका ओके, दिस इज अ वॉल, दिस इज अवर
लैटरल वॉल, दिस इज द मीडियल वॉल, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ये जो लैटरल वॉल है। सो इस लैटरल वॉल में यहाँ से वो क्रॉस होता है, यहाँ से वो पास होता है ओकुलोमोटर नर्व फ्रॉम द एग्जिट ऑफ द मिड ब्रेन बिटवीन द टू आर्टरीज, देन इट विल गोज टू द एंटीरियरली। एंटीरियरली कहाँ पे जाएगा? सो इट विल पास एंटीरियरली थ्रू द, सो इसका थोड़ा और क्लियर करना है, तो दिस इज़ अ मिड ब्रेन, ओके। सो यहाँ पे रहेगा आपका कैवर्नस साइनस। सो नाउ फ्रॉम दिस ओकुलोमोटर नर्व, सो विच विल पास, सो अगर मैं एक ही निकालता हूँ सर राइट साइड का, सो दिस ओकुलोमोटर नर्व, सो विच विल पास थ्रू द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस। सो यहाँ से ये पास हो रहा है इस लैटरल वॉल से, ये अगर पोस्टीरियर देखेंगे तो यहाँ से जा रहा है। सो थ्रू द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस दिस ओकुलोमोटर नर्व विच इज़ पासिंग एंटीरियरली, ये आगे जा रहा है, इसी वॉल में से वो जाता है, कैवर्नस साइनस के अंदर से नहीं जा रहा है। लास्ट हमने देखा था कौन सा आर्टरी में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इट विल पास विद इन द कैवर्नस साइनस, बट ओकुलोमोटर नर्व विच विल पास थ्रू द इट्स थ्रू द वॉल, थ्रू द लैटरल वॉल, दिस इज लैटरल, इस लैटरल वॉल से वो पास होता है। नाउ आफ्टर पासिंग थ्रू द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस, वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट? सो नेक्स्ट, सो आफ्टर एग्जिट, यहाँ से एग्जिट होता है, मतलब कैवर्नस साइनस जो वॉल से एग्जिट हो रहा है। सो आफ्टर एग्जिट ऑफ दिस कैवर्नस साइनस दिस ओकुलोमोटर नर्व, ओके, विच विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, विच विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स या टू डिवीजन या टू ब्रांच बोलते हैं, ओके। यहाँ पे बिकॉज ऑर्बिटल कैविटी कहाँ पे है? दिस इज अवर ऑर्बिटल कैविटी, ओके। सो विल टेक दिस इज अ ऑर्बिटल कैविटी। सो दिस इज योर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सो इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से वो ऑर्बिटल कैविटी में एंटर करना है, ओके। सो ये ओकुलोमोटर नर्व का एक कोर्स, बट और एक इसके साथ आपका और एक याद रखना है। सो दिस ओकुलोमोटर नर्व इज फॉर द मोटर सप्लाई टू द आईबॉल मसल, दैट इज एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स या एक्सट्रिंसिक मसल जो हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल सप्लाई करने के लिए ये ओकुलोमोटर नर्व आ रहा है। बट इसके साथ और एक नर्व फाइबर आता है, इसी हम ओकुलोमोटर नर्व का ही, जिसको हम बोलते हैं ना एक्सेसरी ओकुलोमोटर न्यूक्लियस ऑफ द एक्सेसरी ओकुलोमोटर नर्व, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियस हमने देखा था ये उसका प्रॉपर न्यूक्लियस, जहाँ से प्री एक्वेडक्टल गैरस से जो निकलता है, उसी की जो प्री एक्वेडक्टल गैरस में जो न्यूक्लियस है ओकुलोमोटर न्यूक्लियस का, जो हम बोलते हैं प्रिंसिपल न्यूक्लियस ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व, विद दिस देयर इज वन मोर एसोसिएटेड न्यूक्लियस। सो इसी के साथ देयर इज वन मोर एसोसिएटेड न्यूक्लियस एंड दैट न्यूक्लियस इज नोन एज एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस और एक्सेसरी ओकुलोमोटर नर्व न्यूक्लियस भी बोलते हैं। सो यहाँ पे दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं आपको मिड ब्रेन में सेम लेवल में। सो वन इज द प्रिंसिपल न्यूक्लियस ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व एंड सेकंड उसके साथ लैटरल टू दिस देयर इज वन मोर न्यूक्लियस, देयर इज अ एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, ये भी ओकुलोमोटर नर्व का ही पार्ट होता है। और इसका यहाँ पे क्या हाईलाइट करना है, यहाँ से इस न्यूक्लियस से जो निकल रहा है ना, देयर इज वन मोर नर्व फाइबर। सो ये नर्व फाइबर इसके साथ ही रहेगा, जो ओकुलोमोटर नर्व यहाँ पे पास हो रहा है ना, उसी के साथ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक ए सेक्शन ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व, सो ओकुलोमोटर नर्व का अगर आप सेक्शन लेते हैं, सो इफ यू टेक ए सेक्शन देन सो ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे आपको मिलेगा फाइबर्स कौन से, जो प्रिंसिपल न्यूक्लियस से जो निकलते हैं, और जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से जो निकल रहा है वो जो एक्सॉन्स, वो जो फाइबर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दैट विल बी इन द आउटर पेरिफेरल पार्ट। सो ये आपका एक नर्व है, ओकुलोमोटर नर्व है, उसको अगर आप कट करते हैं, सक्शन करते हैं, तो सेक्शन में आपको बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलेंगे। बहुत सारे नर्व फाइबर्स में सेंट्रल जो डीपन पार्ट रहेगा, सो दैट कंटेन्स द फाइबर्स ऑफ द प्रिंसिपल ओकुलोमोटर नर्व, वेर एज एट द पेरीफेरी वी आर गेटिंग द एक्सॉन्स और द नर्व फाइबर्स ऑफ द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस का। यहाँ का ये जो नर्व फाइबर्स आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। सो दिस नर्व फाइबर, ये जो एक्सॉन, द नर्व फाइबर ऑफ द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व। ये जो इसका फंक्शन क्या रहता है, दिस पार्ट इट विल एक्ट एज ए पैरासिम्पैथेटिक
नर्व फाइबर, इट इज़ एन पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर. सो दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ एन जनरल विसरल इफरेंट. सो विसरल इफरेंट बिकॉज इट इज़ एन इट गोज टू द व्हाट इज़ दैट, इट विल एक्ट एज ए पैरासिम्पैथेटिक. सो ये जो नर्व फाइबर आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेम ओकुलोमोटर, यही प्रिंसिपल ओकुलोमोटर नर्व के साथ. ओके, सो दिस ये नर्व फाइबर क्या काम करेगा, इट विल एक्ट एज ए पैरासिम्पैथेटिक, एंड दिस नर्व फाइबर इट विल एक्ट एज ए मोटर नर्व सप्लाई टू द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स. सो ये दोनों साथ में निकलेगा, सेम कोर्स दोनों का सेम, बिकॉज ये दोनों एक ही पार्ट है. सो दिस इज अ सिंगल वन ओकुलोमोटर नर्व ओनली. सो नाउ सो जब ये पास हो गया, लैटरल वॉल से पास हो गया, दोनों साथ में आ रहा है. ओके, देन आफ्टर एग्जिट it will become the two different division. What are the two different division? One is the superior and one is the inferior. So that is the superior division and the inferior division of the oculomotor nerve. और इसका साथ जो है दूसरा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, so this nerve fiber it will pass through the inferior division of the oculomotor nerve. So दो डिवीजन हो गया, दोनों में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा इन्फीरियर डिवीजन ऑफ द ओकुलोमोटर के साथ जाता है. ओके, नाउ सो यहाँ पे दो डिवीजन हो गया, दो डिवीजन के साथ और एक जो हो रहा है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, और नेक्स्ट आगे कहाँ पे जाता है. सो ये जो डिवीजन होने के बाद ये दोनों डिवीजन, सो दे विल पास थ्रू द दिस वन, दैट इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर अगर आप देखेंगे वो एक फिशर रहेगा, कैसा दिखता है, सो इट विल बी लाइक दिस. सो इट विल बी लाइक दिस. दिस इज़ अ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो हम स्कल में देखते हैं. सो आप मिडिल क्रेनियल फोसा में अगर है तो ऑर्बिटल कैविटी आपको दिख रहा है, तो यू कैन सी द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सो दिस इज अ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. और यहाँ पे थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर देर इज एन पैसेज ऑफ दीज टू क्रेनियल नर्व. ओके, सो यहाँ पे है ना यूजुअली एक रिंग जैसा होता है, जिसे टेंडिनस रिंग बोलते हैं. शायद आपने पढ़ा है आईबॉल में, जो रेक्टस मसल्स, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस. सो अगर ये आईबॉल, सो इफ इट इज़ एन आईबॉल, अगर आप सामने से देखते हैं उसको ना रेक्टस मसल, ये जो आईबॉल है, सो देयर इज एन रेक्टस, ये होता है सुपीरियर रेक्टस, ये इन्फीरियर रेक्टस, ये लैटरल और ये मीडियल रेक्टस. ऐसे आपको देयर आर 4 रेक्टाई मसल्स, उसको रेक्टस मसल बोलते हैं. सो ये जो चारों रेक्टस मसल्स दे विल बी ओरिजिनेट इन द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशरी वाला. इसीलिए यहाँ पे ना एक रिंग जैसा होता है, इसको बोलते हैं टेंडिनस रिंग ऑफ द रेक्टस मसल्स. सो ये जो टेंडिनस रिंग से, सो यहाँ पे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, yes, so this tendinous ring of the recti muscles it will divide into 3 parts. superior orbital fissure ये जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड हो गया. दिस इज अ लैटरल पार्ट, दिस इज अ मिडल पार्ट, दिस इज अ मीडियल पार्ट. सो ये थोड़ा डिटेल में हो जाता है, बट यू शुड नो दैट. सो इसमें जो सेंट्रल पार्ट है, जो मिडल पार्ट है, सो इस जगह से वो एंट्री हो जाता है. सो यहाँ से रहेगा आपका सुपीरियर एंड दिस इज अ इन्फीरियर डिवीजन. सो through the superior orbital fissure, so these two divisions it will get enter into the orbital cavity. Okay, so superior orbital fissure से ये दोनों डिवीजन, superior division, inferior division with a parasympathetic nerve fiber, it enters into the orbital cavity. Now orbital cavity में ये यहाँ पे क्या हो रहा है, so orbital cavity में this is your eyeball. Okay, so eyeball में जो मसल्स मैंने बताया था, ओकुलोमोटर नर्व विच सप्लाइज टू द ऑल द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स एक्सेप्ट द वन दैट इज सुपीरियर ऑब्लिक एज वेल एज द लैटरल रेक्टस मसल्स. ये छोड़ के बाकी सभी मसल को ये सप्लाई करते हैं. ये मसल आपने ऑलरेडी आईबॉल में पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ओके, सो ये जो एंटर होते हैं ऑर्बिटल कैविटी में, सो ऑर्बिटल कैविटी में जब एंटर होने के बाद, सो सुपीरियर डिवीजन, ओके, सुपीरियर डिवीजन ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व विच सप्लाइज टू द मसल दैट इज अ लेवेटर पाल्पेब्रे मसल.
सो लिवेटर पाल्पेब्रे आपने जो पढ़ा है आई बॉल में, सो लिवेटर पाल्पेब्रे, सो ये जो मसल आपका जो आईलिड्स को जो है एलिवेट करता है, सो एलिवेशन करता है, सो दैट मसल जो अपना आईलिड्स का जो मूवमेंट हो रहा है, सो वो जो मसल होता है इज लिवेटर पाल्पेब्रे, सो इट इज हैविंग द बोथ वॉलंटरी एज वेल एज द इनवॉलंटरी पार्ट, जो वॉलंटरी मसल को ये सप्लाई करता है। सो इनवॉलंटरी के लिए अगेन देयर इज अ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, वो अलग होता है। सो बिकॉज ये जो आप आईलिड जो क्लोज करते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली देयर इज एन इनवॉलंटरी पार्ट, अगर आप विलिंगली करते हैं तो वो वॉलंटरी पार्ट। सो एक्चुअली दिस मसल इज हैविंग द टू डिफरेंट पार्ट्स, वॉलंटरी एज वेल एज द इनवॉलंटरी पार्ट. So that voluntary part of the levator palpebrae muscle is supplied by the that is a superior division of the oculomotor nerve. Okay, so ये मसल सप्लाई करेगा कहाँ पे, लेवेटर पाल्पेब्रे मसल को सप्लाई कर रहा है, एज वेल एज सुपीरियर रेक्टस मसल, यहाँ पे एक सुपीरियर रेक्टस मसल रहेगा, लेवेटर पाल्पेब्रे मसल रहेगा, ये दोनों को ये सप्लाई करता है. दैट इज सुपीरियर डिवीजन ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व. देन इन्फीरियर डिवीजन जो जा रहा है, सो इन्फीरियर डिवीजन किसको सप्लाई करता है, इन्फीरियर डिवीजन ऑफ द ओकुलोमोटर इज सप्लाई टू द इन्फीरियरली, दैट इज व्हाट इज दैट, इन्फीरियर oblique muscle. So I will write it here the name. So ये एक होता है levator palpebrae, okay, superior division, and with this that is superior rectus muscle, ये superior division. Then inferior division of the oculomotor is supplied to the किसके साथ, that is inferior what is that, oblique, inferior oblique and inferior rectus, and with this even the medial rectus also, medial rectus muscle. So inferior rectus, inferior oblique and the medial rectus muscle is supplied by the inferior division of the oculomotor nerve. So ये inferior division. ओके, सो ये एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सेप्ट द सुपीरियर ओब्लिक मसल एंड द लैटरल रेक्टस मसल, ये दो मसल छोड़ के बाकी सभी मसल को जो सप्लाई करता है द ओकुलोमोटर नर्व. सो दिस नर्व फाइबर इट विल एक्ट एज ए मोटर, सो दैट जो आई बॉल का जो मूवमेंट्स होते हैं, सो दिस नर्व विच विल कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल थ्रू द मसल्स जो कॉन्टैक्ट करते हैं, जो आपका है ना, जो आई बॉल का मूवमेंट होता है, कि मीडियल होता है, लैटरल होता है, सुपीरियर, इन्फीरियर, सो ये जो डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल होते हैं, सो उस मसल के जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो सपोर्ट करते हैं, दोज मसल्स विल बी सप्लाइड बाय द ओकुलोमोटर नर्व. नाउ सो देयर इज वन मोर पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर कैसे रहते हैं, ये एक्चुअली हम एएनएस में पढ़ना है आगे. सो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर में डिफरेंस क्या होता है, सो दोनों फाइबर्स दे विल क्रॉस टू द गैंग्लियन, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो रहते हैं, सो इट विल हैव द प्री, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, प्री गैंग्लियनिक एंड द पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर. सो प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर इट इज एन लॉन्ग इन द पैरासिम्पैथेटिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर इज द शॉर्ट इन द पैरासिम्पैथेटिक. सो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर यहाँ से क्रॉस हो रहा है, यहाँ से इसके एंट्री हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो एंटर इनटू द ऑर्बिटल कैविटी, सो ये इन्फीरियर डिवीजन के साथ जाएगा. देन और एंटर होने के बाद ये इन्फीरियर डिवीजन को छोड़ देता है. देन इट विल गो टू द अनदर पार्ट, यहाँ पे एक गैंग्लियन आता है. इन द ऑर्बिटल कैविटी देयर इज एन गैंग्लियन, सो दैट इज नोन एज सीलियरी गैंग्लियन, दैट इज अ सीलियरी गैंग्लियन. सो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है ओकुलोमोटर नर्व का, सो इट विल पास टू द सीलियरी गैंग्लियन विच विल बी प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल कैविटी. सो थ्रू द सीलियरी गैंग्लियन, ओके, थ्रू द सीलियरी गैंग्लियन अगेन इट विल गिव द व्हाट इज दैट, अ पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर. वो कैसा रहेगा, सो दिस इज अ गैंग्लियन, दिस इज अ प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर, ओके. देन और यहाँ से जो निकलता है दैट इज पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर. सो ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर है, सो दिस विल, सो इट विल सप्लाई द इंट्रा ऑकुलर मसल्स, द
पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ द oculomotor, so which is supplied to the intraocular muscles. So intraocular muscles में कहाँ पे कौन से मसल को सप्लाई करते हैं? इंट्राओकुलर मसल में, दैट इज अ मसल्स, द सिलियरी मसल्स एज वेल एज, सो दैट इज पुपिलरी, दैट इज अ पुपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल्स. सो नाम तो आपने पढ़ा है, सुना है. सो पुपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल एंड द सिलियरी मसल्स. सो सिलियरी मसल्स क्या काम करता है? विच विल होल्ड द लेंस एंड द पुपिलरी मसल्स जो पुपिलरी कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो काम आता है. सो जो पुपिलरी कंस्ट्रक्टर मसल एंड द सिलियरी मसल्स, सो ये दो मसल, दीज आर द इंट्राओकुलर मसल्स. सो दीज इंट्राओकुलर मसल्स आर सप्लाइड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर किसको सप्लाई करेगा? वन इज पुपिलरी कंस्ट्रक्टर, पुपिलरी कंस्ट्रक्टर, then ciliary muscles. So ciliary muscles. So ciliary muscles and the pupillary constrictor muscle, the intraocular muscle, which will be supplied by the parasympathetic nerve fiber of the oculomotor nerve. Okay, so ये हो गया आपका oculomotor nerve. ये यहाँ से शुरू हो गया फ्रॉम द न्यूक्लियस और एग्जिट. देन कोर्स में आपको बताना है कि लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस, देन एंटर इनटू द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. देन आफ्टर एंटरिंग वी सप्रेस द डिफरेंट मसल्स ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर एज वेल एज द इंट्राओकुलर मसल्स बाय द ओकुलोमोटर नर्व. ओके, सो ये हो गया कोर्स. ये उसका ब्रांच जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिवीजन, यहाँ पे दो डिवीजन हो गया. एंड लास्टली अप्लाइड एनाटॉमी. अगर ओकुलोमोटर नर्व का इंजरी होता है, इट मे बी इन एनी पार्ट, सो यहाँ पे भी हो सकता है, मिड ब्रेन में हो सकता है, कैवर्नस साइनस में हो सकता है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में हो सकता है. ये जो कोर्स है, अमॉन्ग दिस कोर्स एनी एरिया ऑफ द ओकुलोमोटर, कहाँ पे भी वो इंजरी हो सकता है. अगर इंजरी टू द ओकुलोमोटर अगर होता है तो व्हाट विल बी द कंडीशन? सो दोज मसल्स विल बी पैरालाइज्ड. देन लॉस ऑफ, जो पैरालिसिस अगर रहता है, सो लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ दोज रेक्टस मसल्स. देन द जो लिवेटर पाल्पेब्रे, ये जो है ना, जो आपका आईलिड, सो उसको बोलते हैं ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड. सो ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड मतलब जो आईलिड वो ऐसे नीचे आ जाता है. यू आर नॉट एबल टू लिफ्ट दैट आईलिड बिकॉज दैट लिवेटर पाल्पेब्रे मसल जो है, उसको एलिवेट करने वाला मसल, सो दैट विल बी पैरालाइज्ड, सो ड्यू टू द ओकुलोमोटर. ओके, सो एक होता है दैट इज अ ड्रूपिंग ऑफ द लिवेटर, सो ड्रूपिंग ऑफ द दैट आईलिड्स, वन द अबनॉर्मलिटी. एंड दूसरा जो रेक्टस मसल से, इट इज़ नॉट एबल टू, यू आर नॉट एबल टू मेक द मीडियल मूवमेंट एंड इन्फीरियर मूवमेंट. ये जो मूवमेंट आपको जो है ना वो नहीं होता बिकॉज द लॉस ऑफ द नर्व सप्लाई एंड पैरालिसिस ऑफ दोज मसल्स विच विल लीड टू द अनएबल टू मेक द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल. सो अनएबल टू मेक द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल एंड देयर विल बी एन व्हाट इज दैट drooping of the eyelid. So these are the applied aspect of the applied anatomy of the oculomotor nerve. Okay, so now we'll see the next number 4th, that is a trochlear nerve. The 4th cranial nerve, the trochlear nerve. So trochlear nerve का जो न्यूक्लियस, फिर से वही देखना है कोर्स. यहाँ पे कोर्स आपको ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज द कोर्स ऑफ द 4th trochlear nerve is almost same with the थर्ड, बिकॉज जो थर्ड जो क्रेनियल नर्व जा रहा है ओकुलोमोटर, ऑलमोस्ट उसके इन्फीरियर रहेगा बट उसके साथ साथ में रहेगा, बट इट इज़ इन्फीरियर टू द ओकुलोमोटर नर्व. सो अगेन द बेसिक पार्ट, द न्यूक्लियस, वेयर विल गेट द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व इज ऑल्सो इन द मिड ब्रेन. सो मिड ब्रेन में कहाँ पे मिलेगा? इट इज़ एट द लोअर लेवल, इट इज़ एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस. सो मिड ब्रेन का जब हम सेक्शन लेते हैं एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व. द सेम मिड ब्रेन इफ यू टेक ए सेक्शन एट द इन्फीरियर लेवल, दैट इज द इन्फीरियर कॉलिकुलस लेवल में अगर आप सेक्शन करते हैं, देन वी विल गेट द न्यूक्लियस ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व. सो दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन. ओके, सो ये आपका सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल में, ये इन्फीरियर कॉलिकुलस लेवल में, बिकॉज दिस इज सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इन्फीरियर कॉल. यहाँ पे मिला था ओकुलोमोटर नर्व, सो यहाँ पे मिलेगा आपको और ट्रोक्लियर नर्व.
बट ट्रोक्लियर नर्व का एक स्पेशलिटी है. सो मैंने बताया कि ट्रोक्लियर नर्व इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व विद इन द क्रेनियल कैविटी. अगेन इट इज़ एन वाइवा क्वेश्चन. सो विच इज़ द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व अगर पूछते हैं तो आंसर आपको दो आता है, एक आता है ट्रोक्लियर नर्व, एक आता है वेगस. बट आपको क्लियर क्या करना है. सो ट्रोक्लियर नर्व विल बी द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व विद इन द क्रेनियल कैविटी. मतलब क्रेनियल कैविटी के अंदर जो लेंथ जो लॉन्ग रहता है दैट इज़ अ ट्रोक्लियर नर्व रहता है अमॉन्ग द 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व. यहाँ पे क्यों लेंथी रहता है तो ये भी हम यहाँ पे देखते हैं. तो उसके लिए अगेन द डायग्राम. सो दिस इज द आवर मिड ब्रेन. सो सेरेब्रल aqueduct and this is a peduncle and the crus. Now this is at the level of the inferior colliculus. Now so again this is a gyrus part, there is a periaqueductal gyrus part. So इसी periaqueductal laterally the nucleus, there is a nucleus of the trochlear nerve. So यहाँ से इस न्यूक्लियस से जो नर्व फाइबर निकलता है इसका स्पेशलिटी यही बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है. द स्पेशलिटी ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व. सो ये सभी क्रेनियल नर्व्स का जो नर्व फाइबर्स सो दे विल एग्जिट एंटीरियरली रहते हैं. बट ये एक ही क्रेनियल नर्व ऐसा है सो बॉडी में सो विच विल एग्जिट फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. इट विल बी इन द फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. सो ये जो न्यूक्लियस है हमने ओकुलोमोटर नर्व में देखा था, यहाँ से वो आगे एग्जिट हो रहा था. बट द ट्रोक्लियर नर्व विच विल एग्जिट फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. नाउ so this is your left nucleus, this is the right nucleus. So ये जो left nucleus which goes to the posteriorly and there will be an decussation. यहाँ पे उसका decussation भी होता है, मतलब there is a change in the direction. So left nucleus it will come towards right side and the right nucleus से ये जो जा रहा है it will come towards left side. So ये जो trochlear nerve which goes posterior to the midbrain, then they will change the direction, there is a decussation. After changing the direction again they will take a wind या round to the midbrain and then again they will come to the anterior aspect. So ये आपका न्यूक्लियस यहाँ से शुरू हो गया. Okay, then it will goes to the posteriorly or it will change the direction, then it will take a round of the midbrain, then again it will come back to the anterior aspect on both sides. So यहाँ पे हमने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व विद इन द क्रेनियल कैविटी. सो ये यहाँ से लॉन्ग हो गया बिकॉज यहाँ से शुरू हो गया उसका नर्व फाइबर. सो यहाँ से पूरा ये जो वाइंड हो जाता है देन अगेन इट विल सेम पास थ्रू द कैवर्नस साइनस एंड द टिल द ऑर्बिटल कैविटी. सो ये जो पूरा लेंथ है इट विल बिकम ए लॉन्ग एलोंगेटेड पार्ट. सो दैट्स वाई इट इज़ द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व विद इन द क्रेनियल कैविटी. So away other than the cranial cavity या away from the cranial cavity that is a vagus nerve, वो दूसरा होता है. Now so ये उसका exit हो गया. So again it will also come into the anteriorly. और ये जो cranial nerve जब बाहर आता है mid brain से at the level of the inferior colliculus, then so it will continue with the oculomotor nerve. So oculomotor nerve के लिए again the mid brain. सो पॉन्स मेडुला जो यहाँ से हमने देखा था, सो यहाँ से निकल रहा था आपका ओकुलोमोटर नर्व और एट द लोअर लेवल दिस इज अवर ट्रोक्लियर नर्व. सो ये राउंड होके ये आगे जा रहा है. मीन्स यहाँ पे आपका ओकुलोमोटर रहेगा और उसका इन्फीरियर टू द ओकुलोमोटर देयर इज अ ट्रोक्लियर नर्व. सो दीज टू क्रेनियल नर्व दे विल पास एट द सेम लेवल, मतलब सेम डायरेक्शन, उसी लाइन से वो दोनों पास होते हैं. तो जब आगे जाने के बाद कहाँ पे जाएगा, इट इज़ ऑल्सो थ्रू द कैवर्नस साइनस सेम. सो दिस इज अ कैवर्नस साइनस. ओके, अगेन दिस इज अवर लैटरल वॉल. सो इट्स अ लैटरल वॉल. सो ये भी लैटरल वॉल से ये ओकुलोमोटर नर्व भी यहाँ से गया था और ये भी इसी कैवर्नस साइनस से पास होते हैं. बट द थिंग इज यहाँ पे जब एग्जिट होता है तो क्या याद रखना है. सो एग्जिट में क्या हमने क्या देखा था, ये सुपीरियर एंड द इन्फीरियर डिवीजन हो गया था ओकुलोमोटर नर्व का. और ट्रोक्लियर नर्व का क्या होता है,
सो ये जो एग्जिट होते वक्त विच गोज अपवर्ड्स, विच गोज यहाँ से एंट्री करते वक्त इन्फीरियर है, बट एग्जिट आते वक्त इट बिकम्स सुपीरियर पार्ट एंड ओकुलोमोटर बिकम इन्फीरियर पार्ट। सो ये ऐसे क्रॉस हो रहा है, बट जब ये एग्जिट के टाइम पे सो इट गोज अपवर्ड्स एंड इट गोज डाउनवर्ड्स। So oculomotor nerve it becomes inferiorly and the trochlear nerve it becomes the superiorly. So these two cranial nerve number 3, number 4, that is oculomotor and the trochlear nerve. So oculomotor trochlear nerve passes through the same, that is the lateral wall of the. So these two cranial nerve they will also pass through the lateral wall of the cavernous sinus. Okay, so lateral wall of the cavernous sinus से pass होगा same, but only difference यहाँ पे क्या है, exit में it becomes the superior part, oculomotor become inferior part. अब वो ऊपर जाएगा वो it becomes downwards. Then after passing the through the cavernous sinus वो कहाँ पे जाएगा, again it will go to the same part, that is orbital cavity. So this is an orbital cavity. सो ऑर्बिटल कैविटी में कहाँ से जाएगा, सेम ओपनिंग सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, द सेम ओपनिंग सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये एंटर हो जाता है। बट द डिफरेंस इज, जैसे मैंने अभी बताया था, सो ये आपका है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सो दिस इज अ टेंडिनस रिंग। ओके, इस टेंडिनस रिंग से यहाँ पे 3 पार्ट हो गया, लैटरल पार्ट, मीडियल पार्ट एंड स्टिल मोर मीडियल पार्ट, या उसको हम मिडिल पार्ट बोलते हैं। सो यहाँ से हमने देखा था सुपीरियर डिवीजन एंड इंफीरियर डिवीजन ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व। ये जो ट्रोक्लियर नर्व जो है, सो इट विल बी फ्रॉम द लैटरल पार्ट ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल फिशर। सो अगर आप एग्जाम में अगर आप लिखते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फिशर, इट इज कॉमन होता है, बट इफ यू वांट टू स्पेसिफाई, जगह तो सेम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, बट उसमें अगर आपको हाईलाइट अगर करना है, यू कैन राइट लैटरल एस्पेक्ट या लैटरल पार्ट ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल फिशर। सो दिस इज अ लैटरल पार्ट। सो इस लैटरल पार्ट से वो एंटर होता है ऑर्बिटल कैविटी में। सो यहाँ से हो गया आपका, सो दिस 4th cranial nerve, so which is also entering into the orbital cavity through the lateral part of the supraorbital fissure. Now, so after entering into the orbital cavity, इसका function, इसका काम क्या रहता है? So where it supplies? So this muscle, that is, sorry, the trochlear nerve, which supplies to the only one muscle, that is a superior oblique muscle. The superior oblique. It is an extraocular muscle. eyeball के muscle में extraocular muscle. The superior oblique muscle is only one muscle which is supplied by the trochlear nerve. So oculomotor also same extraocular, but it is also an extraocular. Almost दोनों का nucleus तो वही है, midbrain है, but the difference is at the different level, and course is also same, and little bit change in the exit of the cavernous sinus, and it after entering which supplies to the superior oblique muscle. तो superior oblique muscle वो कैसा रहता है? सो जस्ट एक थोड़ा देखता हूँ मैं डायग्रामेटिकली, सो आई कैन शो यू. सो दिस इज द ऑर्बिटल कैविटी. ओके, सो दिस इज अवर आई बॉल, दिस इज द आई बॉल. सो ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल कैसा रहता है? सो दिस इज द, यहाँ से उसका अटैचमेंट रहता है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल. ओके, देन यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस रिंग रहता है. सो इस कार्टिलेज रिंग से, सो अगेन देर इज एन कम बैक, ये वापस ऐसा रहेगा. दिस आर नर्व फाइबर, सॉरी मसल फाइबर. सो दिस इज, ये मैंने क्या दिखा रहा हूँ आपको, सुपीरियर ऑब्लिक मसल. सुपीरियर ऑब्लिक मसल यहाँ से सुपीरियर रहेगा. देन एट द कार्टिलेजिनस रिंग, सो इट विल अगेन इट विल कम बैक. ये जो कार्टिलेजिनस रिंग जैसा ना, इट विल एक्ट लाइक ए पुली. तो इसीलिए जो नाम दिया ना ट्रोक्लियर नर्व, तो ट्रोक्लिया, सो ट्रोक्लिया मीन्स द पुली. यहाँ पे दिस बिकम ए पुली, द कार्टिलेजिनस रिंग इट बिकम्स ए पुली पार्ट. सो ये कार्टिलेज रिंग से अगेन इट विल कम बैक द मसल फाइबर्स एंड दे विल अटैच टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल. सो दिस इज विल टेक ए आई बॉल. सो ये आपका पोस्टीरियर पार्ट. सो ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल, so this is superior oblique muscle, then it will take a
turn, and then these muscle fibers it will attach to the posterior part of the eyeball. So ये जो कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो क्या होता है, सो इस कॉन्ट्रैक्शन से सो द प्रेशर विल बी हियर, सो दैट द आईबॉल मूवमेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस. जब ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो द मूवमेंट ऑफ द आईबॉल मसल्स विल बी टुवर्ड्स इन्फीरियरली, ऐसा हो जाएगा, बिकॉज ये मसल्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो बाय दिस कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी ए डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल. तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल का यही फंक्शन है, सो इट विल मेक अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल. सो बाय दिस सप्लाई बाय द ट्रोक्लियर नर्व. Again, if any injury to the trochlear nerve, any damage to the trochlear nerve, what will happen? The paralysis of superior oblique muscle. So if the superior oblique muscle अगर पैरालाइज होता है, you are not able to lift the eyeball inferiorly, ऐसा आपको lift नहीं कर सकते because the paralysis. So again by this condition what will happen? The person is not able to make the downward as well as a little bit the medial, because ये जो सुपीरियर ऑब्लिक पूरा ऐसा नहीं रहेगा, इट विल बी सुपीरियर लिटिल बिट मीडियल एस्पेक्ट में रहेगा. सो ये जो मीडियल एस्पेक्ट में ऐसे रहेगा सुपीरियर ऑब्लिक मसल. सो सुपीरियर ऑब्लिक मसल क्या कर रहा है, विच इज़ द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आईबॉल 1 एज वेल एज लिटिल बिट द टिल्ट, जो मीडियल रोटेशन जैसे होते हैं, जिसको बोलते हैं ना मीडियल टिल्ट जो होता है आईबॉल का. सो ये जो आईबॉल है, दिस इज सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लैटरल. इसके अलावा देयर विल व्हेन टिल्टिंग होता है, सो सुपीरियर ऑब्लिक से इसमें इट विल टिल्ट लाइक दिस. ओके, ये ऐसा टिल्ट होता है. सो दैट टिल्टिंग विल बी लॉस्ट. सो दैट कंडीशन इज नोन एज उस कंडीशन से क्या होता है, डिप्लोपिया बोलते हैं. मीन्स द पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी प्रॉपर. ये अगर जो व्यू देखना है, अगर आपको देखना है नीचे का पार्ट, सो अभी आप खड़े हैं, सो यू वांट टू सी द लोअर, दिस इज़ अ डस्ट, दिस इज अ लोअर पार्ट. आपको अगर ऐसा रख के देखना है, सो आईबॉल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल टेक दैट चेंज. जैसा कैमरा जूम होता है, सो ऐसा डाउनवर्ड हो जाता है, यू कैन सी द लोअर पार्ट. बट हियर यू आर नॉट एबल टू सी दैट पार्ट. अगर आपको देखना है ना, यू हैव टू टिल्ट योर हेड डाउनवर्ड्स, देन यू हैव टू सी दैट पार्ट, बिकॉज वो जो इन्फीरियर डायरेक्शन का जो मूवमेंट हो रहा है, सो दैट विल बी लॉस्ट ड्यू टू द नर्व, ड्यू टू द लॉस ऑफ नर्व सप्लाई. दैट इज द पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल. ओके, दिस इज अ ट्रोक्लियर. इसका कोर्स मैंने ज़्यादा नहीं बताया, बिकॉज इट इज़ विद द ओकुलोमोटर. जो ओकुलोमोटर नर्व का जो कोर्स है, उसी के साथ ये ट्रोक्लियर रहता है, इसलिए मैंने उसके साथ ही आपको देखना पड़ेगा. ओके, दिस इज 4. एंड लास्टली विल सी द 6th क्रेनियल नर्व. और 5th रखेंगे, 5th वो उसका फंक्शन अलग है, इसको हम सेपरेट पढ़ना है. एंड वन मोर थिंग, द 5th क्रेनियल नर्व, देयर इज अ ट्राइजेमिनल, सो विच इज़ द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व. अगेन इट इज़ एन लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होता है. वो अभी हम इंडिविजुअली कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो आज थोड़ा देखेंगे फिर से 6th. इट इज़ ऑल्सो छोटा रहता है, शॉर्ट है. एंड यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं 6th का, बिकॉज 6th क्रेनियल नर्व, what is that, abducens. So abducens nerve is also supplied to the ocular, the eyeball muscle. तो ये तीनों मसल आईबॉल के लिए होते हैं, इसलिए विल स्टडी द कलेक्टिवली दीज 3 cranial nerves. So the next one is the 6th cranial nerve, abducens. So this is the 6th and this is the abducens nerve, abducens cranial nerve. Then nucleus. सो अभी हमने देखा था ब्रेन स्टेम में, मिड ब्रेन में देयर विल फाइंड ओनली द 2 न्यूक्लियस, द 3rd क्रेनियल नर्व, 4th क्रेनियल नर्व. बाकी का जो है 5, 6, 7, 8, सो वो जो आपको कहाँ में मिलेगा, दैट विल बी इन द pons. सो मिड ब्रेन, सो pons एंड द मेडुला एंड द स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ से आपको मिलेगा ओकुलोमोटर नर्व हो गया एंड द ट्रोक्लियर नर्व हो गया. नाउ द 6th हमने कहाँ पे देखा था, उसका जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द 6th क्रेनियल नर्व. सो दिस इज अ पॉन्स. सो इस पॉन्स में जो पोंटोमेडुलरी जंक्शन, सो इस पोंटोमेडुलरी जंक्शन में मीडियली, सो दिस इज द 6th क्रेनियल नर्व, दिस इज द 7th क्रेनियल नर्व एंड दिस इज 8th क्रेनियल नर्व. 6, 7, 8. सो सेम ऑन द बोथ साइड, दिस इज 6, 7, 8. ये तीनों क्रेनियल नर्व दे विल एग्जिट फ्रॉम द पोंटोमेडुलरी जंक्शन से वो बाहर आते हैं, बट उसका न्यूक्लियस कहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियस विल बी इन द pons. So again when you take a section of the pons in the lower level, so lower level का pons का सेक्शन लेते हैं,
we can see the nucleus of the abducens nerve. So for example, so this is the section of the pons. So anteriorly ये रहेगा pons और यहाँ पे ये पोंटाइन न्यूक्लियस, सो ये ऐसा रहेगा. एंड पोस्टीरियरली देयर इज एन फोर्थ वेंट्रिकल, सो दिस इज एन फोर्थ वेंट्रिकल. ओके, सो ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल. सो अभी आपको देखना है एग्जैक्टली द न्यूक्लियस ऑफ द एब्डोसेंट्स कहाँ पे रहता है. सो न्यूक्लियस ऑफ द एब्डोसेंट क्रेनियल नर्व इट विल बी एट द, व्हाट इज दिस, दिस इज द what we can say the roof of the floor of the fourth ventricle. मैंने बताया था आपको fourth ventricle. How is the fourth ventricle? So this is the fourth ventricle. Okay, so this becomes the roof, this becomes the floor. So ये रहेगा towards pons medulla के साथ और ये रहेगा cerebellum के तरफ. So ये जो nucleus है, so this is the floor of the fourth ventricle. So the nucleus will be at the floor of the fourth ventricle. So यहाँ पे हाईलाइट क्या करना है आपको, जो स्पेसिफिकली मेंशन जो करना है. सो दिस इज द न्यूक्लियस, बट ये जो सिक्स्थ न्यूक्लियस जो है एब्डोसेंस, उसके साथ और दूसरा भी रहता है ना, एक सेवंथ क्रेनियल नर्व का रहता है, फेशियल नर्व. सो ये जो फेशियल नर्व का जो एग्जिट होता है जो नर्व फाइबर, सो इट ऐसा आपको एक ऐसा टर्न करके हमने देखा था वाइल स्टडीइंग द पॉन्स. सो ऐसे कर्व करके बाहर आता है. सो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द फेशियल नर्व, सो दिस फ्लोर इट विल फॉर्म अ बल्जिंग. यहाँ पे ना ऐसा एक बल्ज होता है. सो देयर विल बी अ बल्जिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, एंड दिस बल्जिंग, दिस swollen part is known as a facial colliculus. Facial colliculus. So this is the facial colliculus. So अभी हमें बताना है exactly the location of the nucleus. Location of the sixth cranial nerve is the floor of the fourth ventricle. So exactly at the floor in the superior colliculus, जहाँ पे superior colliculus है वहाँ पे आपको, this is superior colliculus. So here we will have the nucleus of the abducens nerve. So abducent nerve nucleus का at the facial colliculus of the floor of the fourth ventricle. So this is a nucleus. Sixth cranial nerve, abducens nerve. Now, so from this जो nerve fiber exit हो रहा है from the pons, from the pontomedullary junction. So अगर ये nucleus है, so यहाँ से इस nucleus से वो exit हो रहा है abducens nerve. Then after the exit, so what will happen? That is course. So this one, even it is also crossed with the same cavernous sinus, but there is a change. यहाँ पे थोड़ा change है, मैं आपको दिखाना है. So this is our anterior cranial fossa, middle cranial fossa, and posterior cranial fossa, foramina magna. Okay. Now, so this is the midbrain and pons, medulla, and the spinal cord. This is the cerebellum. Okay. So pons, midbrain, pons, medulla, and spinal cord, cerebellum, ये posterior cranial fossa में. So आपका कौन सा abducens nerve कहाँ से निकल रहा है? Through the pontomedullary junction. So where is the pontomedullary? This is a pontomedullary junction. यहाँ से जो cranial nerve जो निकल रहा है, so इसका anterior जब बाहर आने के बाद आपको क्या मिल रहा है? So there is an bony part. So skull में हमने देखा था bony part. So that is a what is that? Slopen part. That is known as the clivus. So ये जो bony part है, so this is a clivus. So ये जो cranial nerve which exit from the pontomedullary junction, so exit होने के बाद सामने आपको मिल रहेगा clivus bone. तो इसीलिए which goes upwards, this cranial nerve which goes upwards through the clivus से वो ऊपर आ जाएगा. So ऊपर आने के बाद ये this is your middle cranial fossa. So middle cranial fossa के लिए again I will show the one more diagram. So this is the skull, sella turcica,
इंटीरियर मिडल पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। सो अभी आपका क्रेनियल नर्व कहाँ पे है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, सो दिस इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा यहाँ पे है। सो यहाँ से आपको वो किधर आना है? मिडल क्रेनियल फोसा में आना है। सो ये जो बिटवीन द मिडल क्रेनियल फोसा एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, व्हाट इज द बोनी पार्ट? ये जो है ना, दिस इज द बोनी पार्ट। व्हाट इज दैट पार्ट? दैट इज द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। दिस इज द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। दिस इज द डिवाइडर बिटवीन द मिडल एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, दिस इज द बोनी पार्ट। सो ये जो एब्डोसेंस नर्व है, सो क्लाइवस से इट गोज अपवर्ड्स, ओके, देन इट विल एंटर इनटू द मिडल क्रेनियल फोसा। सो ये जो मिडल क्रेनियल फोसा जब एंटर होता है, सो देर विल बी एन बेंड, देर विल बी एन व्हाट वी कैन से द एंगुलेटेड पार्ट ऑफ द एब्डोसेंस नर्व। सो यहाँ पे आपका है एब्डोसेंस नर्व, यहाँ पे वो इधर जाना है। बट ये जब ओके, सो दिस इज द मिडल क्रेनियल फोसा, दिस इज अ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। सो द नर्व दैट इज एब्डोसेंस नर्व, सो पोंटोमेडुलस जंक्शन से बाहर आने के बाद, सो इस क्लाइवस से ये ऊपर आ जाता है। ओके, सो ऊपर आने के बाद सो कहाँ पे जाएगा? इट गोज टू द मिडल क्रेनियल फोसा। सो ये जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से जो मिडल क्रेनियल फोसा जो जा रहा है, सो हियर देर विल बी, दिस इज अ पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। सो इस पेट्रल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से जो क्रॉस होता है, देर विल बी एन फॉर्मेशन ऑफ ए एंगुलेटेड पार्ट ऑफ द दिस व्हाट इज दैट? एब्डोसेंस नर्व। सो यहाँ पे एंगुलेटेड पार्ट होता है। ये यहाँ पे क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? इट इज़ ऑल्सो इन क्लिनिकल एस्पेक्ट में आपको बताना है। सो ये ऐसा रहेगा। सो नर्व, एब्डोसेंस नर्व, देन इट विल चेंज, इट विल गो टू द मिडल क्रेनियल फोसा एंड इट विल फॉर्म एन एंगुलेटेड पार्ट। दिस इज एन एंगुलेटेड पार्ट। सो एग्जैक्टली एंगुलेटेड कहाँ पे रहेगा? एट द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। नाउ सो अगेन इन द मिडल क्रेनियल फोसा में क्या है हमारा पार्ट? दिस इज द कैवर्नस साइनस, कैवर्नस साइनस। बट द थिंग इज, so third and the fourth cranial nerve, they will pass through the lateral wall of the cavernous sinus, but the sixth cranial nerve, the abducens nerve, so which will pass through the within the cavernous sinus. So जैसा हमने देखा था internal carotid artery, it is also passes within the cavernous sinus, but even the sixth cranial nerve is also passes through the कैवर्नस साइनस, वो विद इन द कैवर्नस साइनस के बीच में से वो पास होता है। सो दिस क्रेनियल नर्व विच विल पास टू द विद इन द, ये आपको क्लियर करना है। दोनों जो प्रीवियस जो क्रेनियल नर्व जो थे वो दोनों क्रेनियल नर्व दे हैव पास थ्रू द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस, बट द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व विच इज पासिंग थ्रू द विद इन द कैवर्नस साइनस से वो पास होता है। देन अगेन द सेम पास हो गया। ओके, देन इट इज ऑल्सो एग्जिट फ्रॉम द कैवर्नस साइनस। देन कैवर्नस साइनस के बाद वो कहाँ पे जाएगा? इवन दिस क्रेनियल नर्व इज ऑल्सो सप्लाइड टू द आईबॉल मसल, दैट्स वाई दिस इज द ऑर्बिटल कैविटी, दिस इज अ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। द सेम थिंग, इट इज ऑल्सो एंटरिंग इन टू द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। और ये जो एब्डोसेंस नर्व है, सो अगेन आई विल शो यू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ओके, दिस इज द मिडल पार्ट। यहाँ पे हमने देखा था सुपीरियर डिवीजन ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व, इंफीरियर डिवीजन ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व एंड द पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व। और फोर्थ हमने देखा था ट्रोक्लियर नर्व, सो ट्रोक्लियर नर्व यहाँ से आया था। देन एब्डोसेंस नर्व इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम प्लेस, यहाँ से आ जाएगा। दैट इज अ मिडिल पोर्शन ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल फिशर फ्रॉम द सेम ओपनिंग। सो दिस एब्डोसेंस नर्व विच इज एंटरिंग इनटू द ऑर्बिटल कैविटी। सो ऑर्बिटल कैविटी में अगेन द आईबॉल, सो ये कौन से मसल को सप्लाई करता है? सो अभी जो बाकी रह गया मसल, ओनली द लैटरल रेक्टस मसल, बिकॉज सुपीरियर रेक्टस मसल सप्लाई किया था ओकुलोमोटर नर्व, मीडियल रेक्टस एंड इन्फीरियर रेक्टस को सप्लाई किया था कौन सा आपका? इन्फीरियर डिवीजन ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व। एंड लैटरल रेक्टस मसल जो है, सो दैट मसल विल बी सप्लाइड बाय द अब्डुसेंट नर्व। अब्डुसेंस, ये जो नाम देखेंगे ना, अब्डुसेंस नर्व, अब्डुसेंस मीन्स अबडक्शन। सो अबडक्शन बिकॉज जो विच सप्लाइज जो लैटरल मसल है,
lateral rectus muscle. Again, this is a eyeball from anteriorly you are getting the orbit, the eyeball. Okay, this is a superior rectus, inferior rectus, lateral and the medial rectus. So ये जो lateral rectus muscle है, so by the contraction of the lateral rectus muscle, what will happen? So ये जो abduction, ये जो आपका this is right eyeball, the right eyeball है. So right eyeball का ये lateral rectus muscle. So this lateral rectus muscle is separated by the abducens nerve. So ये काम क्या करेगा? What is the function? So by this contraction, so it will make the abduction of the eyeball. ये जो मूवमेंट होता है ना, ये lateral movement, this is a abduction. अगर ये medial होता है, वो medial rectus, वो adduction होता है. But the lateral muscle, there is a lateral rectus muscle of the eyeball, it will take a lateral movement of the eyeball. That is known as a abduction of the eyeball muscle. Abduction, that is a abducens. So just to remember the name of the cranial nerve, by that you can assess its function also. Abducens cranial nerve, which does the abduction of the cranial abduction of the eyeball. So that is a lateral movement of the eyeball. So यहाँ पे जो रहता है lateral rectus muscle, so this lateral rectus muscle is supplied by the abducens nerve. Again, abducens nerve का upgrade aspect अगर बताना है, so abducens nerve may be damaged in any area, any part, and specially यहाँ पे हमने देखा था ना जो angulated part जो मैंने बताया था, petrous part of the temporal bone. So यहाँ पे इस जगह पे, so due to the raised intracranial pressure, so the cerebrum, the intracranial pressure से जो brain part, it may compress this abducens nerve. बिकॉज यहाँ पे जो बोनी पार्ट में ये ऊपर आएगा एब्डोसेंस नर्व जो एंगुलेटेड पार्ट, सो इट में गेट कंप्रेस जहाँ पे वेयर देर इज एन राइज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर. सो ड्यू टू दैट ऑल्सो, सो ड्यू टू द इंट्राक्रेनियल, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ जाता है, सो वहाँ पे भी देर इज अ चांसेस टू हैव द कंप्रेशन ओवर द एब्डोसेंस नर्व और एनी पार्ट ऑफ द एब्डोसेंस नर्व. अगर एब्डोसेंस नर्व अगर डैमेज होता है, so what will happen? Lateral rectus muscle will be paralyzed. So lateral rectus muscle is paralyzed, the person is not able to make a lateral movement of the eyeball. Again, अगर आप ऐसा सीधा देख रहे हैं, so अगर laterally अगर ये wall है, so आपको देखना है तो आपको क्या करेंगे, the eyeball, आपका अपना head turn नहीं होता है, so just you will change the direction of the eyeball, so eyeball will be turned to the laterally, so we can see the, yes, by the same direction we can see the lateral aspect. जो भी lateral पार्ट में जो ऑब्जेक्ट है, यू कैन सी बाय यही पोजीशन में आप देख सकते हैं. अगर lateral rectus muscle is paralyzed, so you are not able to see the lateral aspect of the any object. So तब आपको क्या करना पड़ेगा, you have to turn your whole head towards laterally. So मुझे ये पार्ट देखना है, your lateral rectus muscle is paralyzed, या आपको ठीक से नहीं दिखेगा, तो उसके लिए I have to turn my head, then I can see the lateral aspect of that area. So because that muscle is paralyzed, so that muscle is paralyzed due to the involvement of the abducens nerve, abducens cranial nerve, इसलिए abducens abduction. So that should be remembered. Okay, so ये आपका हो गया the third cranial nerve oculomotor, fourth cranial nerve trochlear, and the sixth cranial nerve abducens. And next class में अभी देखना है the trigeminal nerve.